हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, जिसमें हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विथ द डेफिनेशंस ऑफ द कीवर्ड्स। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे एक्टिविटी के साथ टोटल 4 पार्ट्स में समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले कीवर्ड्स के डेफिनेशंस जानते हैं। नंबर 1 कीवर्ड इज क्लाइंबर्स। A climber is a type of plant which has thin, green, long and weak stem, and that is why they need support to go upright. They are called climbers. For an example, cucumber plant. Second keyword is conduct. Conduct means to carry a substance from one place to another place. For an example, the stem conducts water from roots to the other parts of the plant. Third keyword is creepers. Creepers are some plants which has thin and weak stem that cannot grow upright, and hence they spread on the ground, and they do not have the special tendrils also जो climbers में होता है, जिसके सहारे वो किसी भी ऊपर वाली जगह पे ऊपर चढ़ पाएँ। तो इसीलिए ये ग्राउंड में ही स्प्रेड करते हैं। For an example, strawberry plant. Next keyword is fibrous root, the type of root in which there is no main root and many thin thread-like roots comes out from the base of the stem, and all these are very thin kind of एक गुच्छे की तरह ये roots निकलते हैं, and that is why these type of roots are called fibrous roots. For example, grass, banana plant have fibrous root in them. Next keyword is herb. Herbs are the short plants with green tender stem which do not have branches are called herbs. For example, coriander, spinach, etc. Next keyword is lamina. Lamina is the broad, thick green portion जो हम अपनी आँखों से देख पाते हैं। This green portion, broad portion of the leaf is called lamina. उसी के साथ ही एक और related word है, that is the midrib here in our keyword. Midrib, it is the thick vein in the middle of the leaf जो हमें प्रोमिनेंटली अपनी आंखों से दिखाई देता है। इसी को हम मिड रिब बोलते हैं। पार्ट ऑफ द लीफ में ही एक और पार्ट है, दैट इज द पिटियोल। पिटियोल इज द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ द प्लांट। तो इसी पोर्शन को हम पिटियोल बोलते हैं। कीवर्ड्स में नेक्स्ट है लैटरल रूट्स। टैप रूट सिस्टम में जो छोटे छोटे स्मॉलर रूट्स होते हैं, स्मॉलर रूट्स विच अराइज फ्रॉम द मेन रूट इन द टैप रूट सिस्टम आर कॉल्ड लैटरल रूट्स, जो ये साइड से निकलते हैं टैप रूट सिस्टम में। हमारे कीवर्ड्स में टैप रूट सिस्टम भी है और उसका डेफिनेशन है द रूट सिस्टम इन विच अ सिंगल मेन रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम विथ thin branching roots from its sides. It is called the tap root system. For example, the carrot plant, radish plant all have tap root system in them. Next keyword है बुक में ovule. Ovule जो होता है वो small bead like structure होता है ओवरी के अंदर। Small bead like structure present in the inner wall of the ovary are called ovules. नेक्स्ट कीवर्ड है बुक में पैरेलल वेनेशन। वेनेशन जो है वो वेन्स का अरेंजमेंट है लीफ के ऊपर। So when the veins of a leaf run parallel to each other, such type of arrangement of veins is called parallel venation. जैसे grass and banana leaf, यहाँ पे mid rib के sides में से जो veins निकल रही हैं, ये सभी veins parallel to each other है, means they have equal distance between them. So these are parallel lines and that is why this type of venation is called parallel venation. उसी का opposite है reticulate venation. When the veins and veinlets, veins जो है वो मिड रिब के साइड में से जो लाइंस निकलती है उसे हम वेन बोलते हैं, और वेन के भी अंदर से जो और भी पतले पतले धागे जैसे लाइंस हमें दिखाई देते हैं वो होता है वेनलेट। तो जब वेन्स एंड वेनलेट ऑफ अ लीफ मिला के एक नेट लाइक डिज़ाइन बनाते हैं ऑन बोथ द साइड ऑफ द मिड रिब, such type of venation, such type of arrangement of veins is called reticulate venation. So this type of reticulate venation is present in mango tree, peepal tree, etc.
टेक्स्ट बुक में एक और कीवर्ड है, छूट गया था, पेटल्स। पेटल्स हमारे फूल का कलरफुल हिस्सा होता है। पेटल्स आर द कलरफुल एंड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ अ फ्लावर। प्रोमिनेंट मतलब हमें दूर से फूलों के पेटल्स ही नज़र आते हैं। डिफरेंट फ्लावर्स हैव डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट कलर ऑफ द पेटल। और ये पेटल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, इनमें बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। नाउ लेट अस कम दिस साइड, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। इन 4 चीज़ों को मिला के जो फूड जो कि होता है ग्लूकोज फॉर द प्लांट्स, तो इसी फूड को बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज पिस्टिल, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट सर्कल ऑफ द फ्लावर। सबसे अंदर की तरफ पिस्टिल रहता है। एंड पिस्टिल इज समटाइम्स कॉल्ड एज कोरोला ऑल्सो। पिस्टिल के 3 पार्ट्स होते हैं। द अपर टॉप मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, द मिडल ट्यूबुलर पोर्शन इज कॉल्ड स्टाइल एंड द स्वोलन बेस, फूला हुआ पोर्शन, दैट इज कॉल्ड द ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स रहते हैं। तीनों को मिला के हम पिस्टिल बोलते हैं, दैट इज द फीमेल पार्ट। पार्ट ऑफ द फ्लावर में ही है सेपल। Sepal are the green leaf-like structure on the base of the flower. The green leaf-like structure present in the outermost base of a flower which protects the flower when it is in the bud form. जब फूल ओपन नहीं होता है, बड के फॉर्म में होता है, तब यही सेपल्स फूल को प्रोटेक्शन देके रखते हैं। These are called as sepals. Next keyword is shrubs. Shrubs are the medium heighted plants with thick brown stem and whose branches appear from the base of the stem. These plants are called shrubs. For example, lemon, rose, tulsi, all are type of shrubs. Next है stamen हमारे keyword में. It is also very important part of the plant. Stamen is the male part और stamen के total 2 parts होते हैं. जो ऊपर वाला part होता है that is called the anther. Anther के अंदर ही पाउडरी पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं और ये नीचे जो स्टॉक टाइप का चीज़ है इसे हम फिलामेंट बोलते हैं। इन दोनों को मिला के ही स्टेमन कहा जाता है। नेक्स्ट कीवर्ड इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स। वाटर वेपर का लॉस, लीफ में प्रेजेंट जो छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं जिसका नाम स्टोमेटा है, उन्हीं ओपनिंग से वाटर का लॉस होता है और इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। What are trees? Trees are very tall plants that have thick, hard and woody stem and whose branches appear from very high up on the plant. And these type of plants are called trees. For example, mango tree, coconut tree, banyan tree, etc. Last keyword, veins क्या होते हैं? Veins are the thin thread-like structures arising from both the side of the midrib of a leaf. Midrib के left and right जो lines हमें जाती हुई नजर आती हैं, उन्हीं को हम veins of the leaf बोलते हैं। Now let us go to exercise questions. Number 1 question, correct the following statement and rewrite them in your notebook. यहाँ पे कुछ sentences दिए हुए हैं, इनमें कुछ problem है, हमें उनको correct करके लिखना है। Number 1 is stem absorbs water and mineral from the soil. No, it is wrong. Stem नहीं, root absorb water and minerals from the soil. Number B is leaves hold the plant upright. No, leaves नहीं, stem plant को upright hold करके रखते हैं। Stem holds the plant upright. C is roots conduct water to the leaves. No, roots नहीं, stem conducts water to the leaf. root का काम सिर्फ soil में से water को absorb करना होता है। Number D is the number of petals and stamens in a flower is always equal. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। The number of petals and stamen in a flower may not be always equal. Number E is if the sepals of a flower are joined together. जैसे कि हमने चाइना रोज फ्लावर में देखा तो उसके sepals jointed थे, so its petals are also jointed together. नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हमारे चाइना रोज के फ्लावर में sepals jointed थे लेकिन petals jointed नहीं थे। Answer, if the sepals of a flower are jointed together, then its petals are not necessarily jointed together. The last is F. If the petals of a flower are jointed together, then the pistil is joined to the petals.
दैट इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी। इफ़ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंटेड टुगेदर, जैसे धतूरा के फ्लावर में होता है या फिर बेल फ्लावर में होता है, यहाँ पे एक गोल एक ही पेटल होता है जो जॉइंटेड होता है, तो ज़रूरी नहीं कि इस फ्लावर में जो पिस्टल हो वो भी पेटल के साथ जॉइंटेड ही हो। इट इज़ नॉट नेसेसरली जॉइंटेड। देन क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लीफ। लीफ हम जब भी बनाएंगे सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके उसके बाद ऊपर का लीफ बनाएंगे। नीचे का जो स्टॉक है उसका नाम है पीटियोल। बीच में से जो लाइन आ रही है उसे हम मिड रिब लिखेंगे। साइड में से जो हमारे छोटे छोटे लाइंस जाएंगे उन्हें हम वेन्स लिखेंगे। देन वन मोर पार्ट इज द लैमिना। इट इज द थिक ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, द ब्रॉड पोर्शन। टिप का नाम भी हम लिख सकते हैं एपेक्स ऑफ द लीफ, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द लीफ। नेक्स्ट बी इज द टैप रूट सिस्टम। सो फॉर दैट द सिंगल मेन रूट विच इज अंडर द सॉइल, और ऊपर आप कैसे भी प्लांट बना सकते हैं। दिस इज द टैप रूट, और टैप रूट से साइड में से कुछ रूट्स निकलते हैं, दोज आर कॉल्ड द लैटरल रूट्स। से इज ड्राइंग ऑफ अ फ्लावर। सो इन माई पार्ट 4 वीडियो ओनली आई टॉट यू हाउ टू ड्रॉ फ्लावर। बेस में से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेपल्स बनाएंगे, दैट इज नंबर 4। उसके बाद बेस का ओवरी बनाएंगे, द स्वोलन पोर्शन, दैट इज द ओवरी। ऊपर से स्टाइल बनाएंगे और फिर स्टिग्मा बनाएंगे। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिला के हम पिस्टल नेम लिख देंगे। देन वी विल ड्रॉ स्टेमन, नीचे का स्टॉक जो कि फिलामेंट होता है, एंड देन ऊपर से एंथर बनाएंगे। इन दोनों को मिला के हम स्टेमन नंबर 2 लिख देंगे। उसके बाद जो कलरफुल पोर्शन होता है वो पेटल होता है, हम साइड में से उसको ड्रॉ करके कलर करके नंबर 3 पेटल लिख देंगे। और ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम ओव्यूल्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट weak stem? Write its name and which category you will place it. So such type of plant is present in my home. It is a cucumber plant. It has a thin, long and weak stem. Weak stem इसलिए क्योंकि ये सीधा खड़ा नहीं हो पाता, इसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। So because this plant has got tendrils with him, so with the help of tendrils only ये climb करता है ऊपर। So this is a climber plant. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम? एक स्टेम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन, इट बियर्स द लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट। सेकेंड इसका फंक्शन ये है, इट कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। थर्ड फंक्शन ये है कि लीफ जो खाना बनाता है उस खाने को ये ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फोर्थ फंक्शन ये है, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। स्टेम की वजह से ही प्लांट सीधा खड़ा रह पाता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, इन सम प्लांट्स स्टेम इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ कुछ प्लांट्स में स्टेम फूड को स्टोर करके रखते हैं, जैसे हम स्टेम वेजिटेबल्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, एस्पेरागस, पोटैटो एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन? सो आउट ऑफ व्हीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज, इन्हीं तीनों में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और बाकी जो व्हीट, मेज एंड ग्रास है इनमें पैरेलल वेनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, इफ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट, अगर किसी प्लांट में फाइब्रस रूट है, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीफ हैव? किसी प्लांट में अगर फाइब्रस रूट है तो फिर उसके लीव्स में पैरेलल वेनेशन होगा, जैसे कि हमारे बनाना प्लांट में होता है और हमारे ग्रास में होता है। इनके लीफ में ही हमें पैरेलल वेनेशन नज़र आता है, तो प्लांट को उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे ही पता है अगर पैरेलल वेनेशन है तो फाइब्रस रूट ही होगा, अगर फाइब्रस रूट है तो फिर पैरेलल वेनेशन ही होगा पत्तों में। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक वैसा ही, इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिक्यूलेट वेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव? अगर किसी प्लांट में रेटिक्यूलेट वेनेशन है, मतलब पत्तों में नेट लाइक डिज़ाइन मौजूद है, तो उसके रूट में टैप रूट सिस्टम होगा। रेटिक्यूलेट वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम, दीज टू आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 8, is it possible for you to find out whether a plant has taproot or fibrous root by looking at
द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीफ ओनली। तो जैसे कि हमने अभी अभी बोला, येस इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड आउट इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ पैरेलल वेनेशन, तो उसके रूट में फाइब्रस रूट्स ही होंगे। और अगर किसी प्लांट में रेटिक्यूलेट वेनेशन है, नेट लाइक डिज़ाइन है, तो उसके रूट में टैप रूट सिस्टम होगा। तो इसी से हमें पता चल जाएगा, लीफ देख के ही हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर? सो देयर आर 4 मेन पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मैंने सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन में प्लूरल लिखा है क्योंकि ये एक से ज़्यादा होता है, जबकि पिस्टिल फ्लावर में एक ही मौजूद होते हैं। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स देयर इज ओनली वन पिस्टिल। नाउ क्वेश्चन 10 वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स? हमें बहुत बड़े बड़े फूल ही दूर से नज़र आते हैं और हम सोचते हैं कि सिर्फ वही फ्लावर है, और कुछ कुछ प्लांट में हमें फ्लावर हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, नज़र नहीं आते, तो हम सोचते हैं फ्लावर नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रीज़ हैव फ्लावर्स इन देम। अगर फ्रूट बन रहे हैं तो फ्लावर होंगे ही होंगे। तो एक एक करके हम उन सभी चीज़ों को विथ फोटोज़ मैं आपको मिंटॉक इंडिया चैनल में दिखाऊंगी। सबसे पहले ग्रास, हमने घास के फूल शायद ही हार्डली वी हैव ऑब्जर्व्ड एनी, लेकिन ग्रास में भी फ्लावर्स होते हैं। येस, सो वी विल पुट अ टिक ऑन इट। ग्रास अगर बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे उग जाएं तो उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स नज़र आते हैं। नेक्स्ट इज़ द मेज़, मतलब कॉर्न का प्लांट, इसमें भी फ्लावर्स ऊपर की तरफ येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स उगते हैं। नेक्स्ट इज़ द व्हीट। व्हीट में तो हमें कभी भी फूल नज़र नहीं आते बड़े बड़े, क्योंकि व्हीट इतने छोटे साइज़ का जो होता है, तो उसके जो फूल होते हैं वो भी एकदम टाइनी टाइनी होते हैं। सो यस, व्हीट इज़ ऑल्सो अ फ्लावरिंग प्लांट। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज चिली। चिली भी एक टाइप का फ्रूट ही है अपने प्लांट का, तो ये भी फ्रूट वाइट कलर के इन छोटे छोटे फ्लावर्स से ही बनता है। सेम फॉर टोमेटो ऑल्सो। टोमेटो के प्लांट में भी पहले येलो कलर के फ्लावर आते हैं और फिर इसी फ्लावर में से फ्रूट बनता है। तुलसी के प्लांट में आपने ज़रूर इसे देखा होगा, तो सबके घर में होता है। तो ये जो बीज जैसे बनते हैं ऊपर छोटे छोटे पाउडरी थिंग, यही एक्चुअली में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। सो तुलसी ऑल्सो हैज़ फ्लावर्स इन इट। पीपल ट्री के फ्लावर बहुत कम हमें दिखाई देते हैं, बट येस पीपल ट्री ऑल्सो हैज़ स्मॉल फ्लावर्स इन इट। उसके बाद हमारे लिस्ट में है शीशम। शीशम का पेड़, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन रोज वुड भी बोलते हैं, ये फ्लावर आता है। येस, शीशम ट्री हैज़ फ्लावर्स इन इट, लेकिन ये फ्लावर इतने छोटे होते हैं कि दूर से हमें सूखे हुए पत्ते जैसे ही लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि फूल होते नहीं हैं, बट येस इवन शीशम ऑल्सो हैज़ फ्लावर्स इन इट। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज बैनियन ट्री। इवन बैनियन ट्री में भी छोटे छोटे फूल आते हैं और उसी से छोटे छोटे रेड कलर के फ्रूट्स बनते हैं। मैंगो ट्री, इतने टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स कहाँ से बनते हैं? फ्लावर से ही तो बनते हैं। सो मोस्टली इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू मस्ट हैव सीन, पेड़ों में इस टाइप के कुछ छोटे छोटे फूल आते हैं और इन्हीं फूलों से फिर आगे चल के टेस्टी मैंगो बनता है। इवन द जामुन ट्री ऑल्सो, पहले इस टाइप के फ्लावर उगते हैं और फिर उसी फ्लावर से जामुन, ब्लैक कलर के जामुन बनते हैं। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज गुआवा। गुआवा ट्री हैज ऑल्सो वाइट कलर फ्लावर्स इन इट, इसी फूल से गुआवा बनता है। पोमोग्रेनेट, अनार का पेड़, अनार के पेड़ में भी रेड कलर के फ्लावर होते हैं और उसी से अनार बनता है। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज पपाया प्लांट। पपाया भी क्योंकि फ्रूट है और ये फ्रूट फ्लावर से ही बनाएगा, सो यस पपाया ऑल्सो हैज़ फ्लावर इन इट। बनाना ट्री के फ्लावर को तो हम एज अ सब्जी बना के खाते हैं, एज अ वेजिटेबल, सो बनाना प्लांट ऑल्सो हैज़ फ्लावर। लेमन प्लांट में भी फ्लावर उगते हैं और इसी फूलों से लेमन बनता है। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज शुगर केन। वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत सारे बच्चों ने शुगर केन के फ्लावर नहीं देखे होंगे, बट येस शुगर केन ऑल्सो हैज़ फ्लावर्स इन इट। जब ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, बहुत देर तक हम इसे कट नहीं करते, तो ऊपर ऊपर इसके फ्लावर उगते हैं। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज पोटैटो प्लांट। पोटैटो ज़मीन के नीचे उगता है, लेकिन ज़मीन के ऊपर जो पेड़ उगता है उस पेड़ों में भी फूल आते हैं। लास्ट इन आवर लिस्ट इज ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली। मूंगफली भी ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर मिट्टी में उगता है, तो ये प्लांट भी दिखने में कुछ ऐसा होता है और इसके भी येलो येलो कलर के फ्लावर्स उगते हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन द ग्राउंडनट प्लांट, आई विल शो यू इन मिंटॉक इंडिया चैनल। ये ग्राउंडनट ज़मीन के नीचे रूट्स के अंदर, रूट नोड्यूल्स की तरह, ऐसे ऐसे गोले गोले की तरह मूंगफली उगती है और उसके ऊपर येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। सो ऑल द प्लांट्स विच हैज़ फ्लावर्स इन इट, मैंने उसे यहाँ पे टिक मार्क कर दिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस फूड एंड
Name the process by which the food is produced. The food is produced by the leaves of the plant, and the process is called as photosynthesis. In the process of photosynthesis, the plant combines water, sunlight, carbon dioxide and chlorophyll to prepare its food. Next is question number 12. In which part of a flower will you find the ovary? Answer: the ovary is present in the innermost part of the flower, which is called pistil. Pistil का जो सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है, the swollen base of the pistil is called as ovary. And in exam, if it is a 5 marks or 4 marks question, you have to draw the photo of the pistil also. So this is the stigma. This long tubular portion is called as style, and this swollen base is called as ovary. And inside the ovary there are little tiny ovules present. And then the last question, name 2 plants in which one has joint sepals and the other plant which has separate sepals. So in our part 4 only we have done the activity joint sepals. हमने hibiscus यानी कि चाइना रोज में देखा था, and other than that cotton में भी होता है jointed sepals, और separate sepals होते हैं रोज के और lotus flower में. So that's all for today's class. I hope you have understood all the questions very well. We will meet very soon with some extra questions related to this chapter. So till then, thank you very much and God bless you all.